So first of all, Aniket, I welcome you to Voices of Experience, and man, it's really a privilege here to host you here. So just wanted to know that how you feeling today. Thank you, Bhaiya, for inviting me for the Voices of Experience. It's wonderful to be a part of this initiative. I hope our conversation will help fellow aspirants and the upcoming students in their journey for CAPF and other defense examinations. बिल्कुल भाई बिल्कुल आई वॉज एक्साइटेड डेफिनेटली टू होस्ट यू बिकॉज यू आर हैविंग great amount of experience भले वो SSB interview का हो and CAPF का भी हो but before we proceed with the set of questions let's start with your introduction. You can just throw some light on your education qualifications and also what was your motivation to join this Central Armed Police Force as an assistant commandant. Sir, I belong from Durgapur, West Bengal. I have pursued BTech Mechanical Engineering from NIT Durgapur. Then I went for a corporate job in PricewaterhouseCoopers. But parallelly, I was preparing for defense examinations, including the CDS, CAPF, and FCAT. In the year 2024, I secured the rank 44. And for me, joining the CAPF has always been the adventurous life that it provides because we all know the wide spectrum of job that the CAPF personnel take over from for the internal security of this country is itself a very motivating factor for me so that I could contribute my effort towards the organization. And therefore, I decided to prepare a whole year for it from 2023, and now I have secured the rank that I have been allotted in 2024. So we are expecting that the force allocation would be done in the few months to go, and I am very much excited to join what organizations they allot to me. ओके चलो मैन दैट्स ग्रेट टू नो एंड ऑडियंस को यार देखो वैसे क्लैरिटी तो है कि CAPF है क्या बट सिंस यू हैव बीन इन टू द प्रेपरेशन स्टेज एंड यू हैव ऑल्सो क्लियर्ड इट है ना पहले अटेम्प्ट में तो यू वर अनफॉर्चुनेट दैट यू कुड नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट बट सेकंड अटेम्प्ट में आपका CAPF हो गया एज एन असिस्टेंट कमांडेंट तो थोड़ा सा यार ऑडियंस को आप एक ब्रीफ आइडिया दे दो अबाउट द CAPF एंड स्पेशली अबाउट द असिस्टेंट कमांडेंट पोस्ट right? So it would be great for all of us. So the CAPF examination is conducted by UPSC. It's one-time examination over the year. It takes two papers, paper one and paper two. And for the post of assistant commandant, I would say it is the parallel to captain in the Indian Army and the deputy superintendent of police in the state police forces. It's a gazette a post for of government of India, and five forces are being allotted. First is the BSF, CRPF, CISF, ITBP, and SSB. And the as it is conducted by UPSC, so aspirants would be having a fear of that unpredictability of that board. So that takes a lot of preparation over the years to crack this examination. And yes, I failed in my first attempt, but got successful in the second uh, in 2024. So, Aniket, we clearly know that you secured All India rank of 44 in this CAPF merit list. So, I just want to know here what sparked your interest basically in this CAPF, and also I can see that you have appeared for SSB interview also simultaneously. So, just tell us, what motivated you to go ahead with this CAPF and also with the defense forces. So the my journey for the defense forces started in my college years. It was the time of COVID. I was getting influenced by the all the interactions that were taking on in the YouTube platform by the military personnel that act as a sparking agent for me. Ki, yes, I am also capable of focusing on a career on the defense services. So therefore, I have a good search on the internet about the opportunities that the services provide to get me into the armed forces. So the first examination was the CDS, of which I attempted in 2024, but unfortunately the SSB procedure got me conference out. Then the second examination that I focused was the AFCAT, the Air Force Common Admission Test, where also I went for the AFSBs in three places, but unfortunately again got conference out. Then I also get to know about the UPSC CAPF. The main factor which differentiates CAPF is its paper two. So I need a good practice, or I would say a hefty amount of time need to be allotted for subjective answers. So therefore, I make it as a I would say a whole set of target which will be covering the CDS paper one and the
AFCAT reasoning papers, and but extra effort needs to be done in the paper two. So that's why I tried to balance the CAPF preparation, yeah, so that I can have a good practice of the MCQ as well as a writing practice. But in 2023, I couldn't clear it because it was lack of practice from my side, and also we know that UPSC is some board that prepares you to be the hardest in your preparation time. The question range varies from everything to anything, I would say. Therefore, I took a year of preparation. Again, the motivation for joining the defense forces was the grit and the uh, life that I was aspiring for, and the CAPF offers me the same because the organization is also taking part in military operations and in the hardened areas of Chhattisgarh as well as in Jammu Kashmir. So yeah, that's a quite insightful answer. I guess you have covered all of the points. Aniket, the audience also wanted to know that you appeared for SSB interviews side by side, right? So we just want to know the entries for which you have appeared, right? How many times did you appear for your SSB interview? And since you told that you were unable to clear it, so what was the result and what were the key learnings from those rejections which helped you in getting All India rank of 44 in the CAPF? So my first SSB was through AFCAT in 5A phase big Guwahati. It was a very new board for AFSB, so the batch size was little bit small. To 24 of us were get got screened in, and only one remember got recommended. So that was the first interaction I had with the selection procedure. Since I didn't have any experience, I was a fresher for that. Therefore, I took learnings from it. Ki I need to work upon my communication. I need to work upon my writing because psychology you have to be quality as well as speed at the same time. And also in interview, you must be confident at least to present yourself to an interviewing officer of such a eminent background. And in the most interesting part, I would say, is the GTO because it's a totally new experience where you have to practically apply your idea of solving problems. You have to communicate among yourselves. You have to present good points in the GD. So therefore, it was a very new experience for me. And since coming from first AFSB, I started preparing for the next boards. फर्स्ट ऑफ ऑल द रिटर्न पार्ट आई वाज कॉन्फिडेंट कि ना रिटर्न मेरे से हो जाएगा बट एफएसबी के लिए मुझे थोड़ा सा और प्रैक्टिस की जरूरत है सो आई स्टार्टेड राइटिंग मोर एंड मोर स्टोरीज एंड योर प्रोग्राम आल्सो सर हेल्प मी वेरी मच टू एटलीस्ट कम ऑन द ट्रैक कि रियलिटी क्या है एग्जामिनेशन का नहीं तो सर एक आई वुड से मिथ चलती है एसएसबीज में यू नीड टू बी फ्रॉम दिस बैकग्राउंड इतने अच्छे इंग्लिश स्पीकिंग स्पीकर से मिलते बिल्कुल हैं बिल्कुल यार, वो स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर देती है बिकॉज आजकल नो डाउट सोर्सेज बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं बट वही है, कन्फ्यूजन भी डबल हो गई है उसकी वजह से. सो आई गेस एक प्रॉपर बहुत डायरेक्शन और एक ट्रैक मिल जाए तो आई गेस इट हेल्प्स अस इन चूजिंग द करेक्ट पाथ. यस भैया और बिकॉज द सेम टाइम ऑफलाइन कोचिंग और ये जाना सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है बिकॉज यू हैव अ जॉब यू हैव टू हैव अ बैलेंस ऑफ इट ऑनलाइन प्रिपरेशन हेल्प्स और इसमें तो सबसे ज़्यादा हेल्प साइकोलॉजी में ही होता है यू गॉट पीपीटीज यू गॉट गुड अमाउंट ऑफ पीडीएफ एंड यू नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर बिकॉज हमको स्टोरी ऐसे लगता था कि जस्ट हैव टू राइट व्हाट इज हैपनिंग बट यू आल्सो हैव टू think what has happened or what has led to this situation then what is happening in the situation and what is going to happen that is the three steps in a story writing more and more actions need to be added so ये जो critical elements आपको चाहिए to clear the SSB is very important and it comes to practice the best example would be the word appreciation test that happens without practice we cannot write or cannot think for such a small fraction of a second a whole good sentence so मुझे लगा कि I have to focus on my speed, my thinking. सिमिलरली फिजिकल फिटनेस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज जीटीओ में आपको थोड़ा सा एनर्जेटिक प्रेजेंटेशन देना पड़ता है यू हैव टू बी मोर मोर पावरफुल इन योर voice or in giving suggestions to your fellow candidates or fellow chess members and in interview you also have to prepare about good knowledge about the forces because interviewing officer कभी कभी डेप्थ में जाते हैं जैसे भोपाल में
सर जा रहे थे, ही वॉज गेटिंग इन टू रेजिमेंट्स, ही वॉज गेटिंग इन टू पीवीसीज, ही वॉज गेटिंग इन टू दी आर्मर्ड रेजिमेंट्स में कौन कौन इक्विपमेंट्स हैं, क्या बैरल साइज है. So these typical or critical questions that I would say is very important. So ऐसे करके मैंने अपना एसएसबी की प्रिपरेशन को और शार्पन करने की कोशिश की. But unfortunately, again, when I went for the AFSB in Varanasi, from my side, it was my best appearance. But unfortunately, I might be lagging in some of the portions that the board has think I am not capable of. So they got me conference out. In for the last SSB, I got conference out was the Bhopal board. So I think the hectic schedule has taken on me, so I couldn't Okay. perform on the GTO part because I have evaluated कि मेरा GTO बहुत खराब था. Okay. I So have talked with Aniket, my in total of how mates. many SSB attempts did you give? Sir, three SSB, Okay. two AFSBs and one SSB, Okay. And two were for AFCAT and one was for CDS. CDS. Right? And on all three you got conference out. Yes, sir. Okay, All three so like conferences. in a nutshell, if we ask you any three key learnings, right, that you got and you utilized it in your CAPF preparation, so what those three learnings would be? So the three learnings first would be the knowledge. You cannot compromise on knowledge. It helped me in my preparation in CAPF because in interview you get cross questioned in every answers that you gave to the IU. Second, in the communication, it helped me develop my skill of communicating with senior personals, also your own colleagues of here in the SSB. So it helped me in the interview of the UPSC. And again, the step of GTO where you need to be physically very much energetic. The individual obstacle is itself a hectic task of completing the 10 obstacles. It helped me in my preparation of physical efficiency test in CAPF. So these three takings, I would say, helped me ultimately getting the result I wanted in CAPF. ओके चलो दैट्स ग्रेट टू नो मैन. अब यार थोड़ा ना CAPF एग्ज़ाम को लेके बात करते हैं उसके बारे में. सो वी नो दैट देर आर टू पेपर्स राइट. पेपर वन है जो कि ऑब्जेक्टिव होता है और पेपर टू सब्जेक्टिव होता है. सो यू नो द ऑडियंस इज़ रियली विलिंग टू नो दैट हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर इट. एंड कोई अगर एक बिल्कुल नया इंसान है एंड ही और शी इज़ एमिंग टू प्रिपेयर फॉर CAPF असिस्टेंट कमांडेंट, तो उसे क्या क्या स्टेप्स ध्यान में रखने चाहिए और कैसे इन पेपर वन और पेपर टू की प्रिपरेशन को शुरू करना चाहिए. सर सबसे पहले जो एकदम नए एस्पिरेंट्स है जो एंटर कर रहे हैं इस एग्जामिनेशन फील्ड में, टू फर्स्ट ऑफ ऑल हैव अ वेरी हैंडी प्रिंट आउट ऑफ योर सिलेबस कि आपकी सिलेबस क्या है. बिकॉज लोग पढ़ते पढ़ते भटक जाते हैं कि सब कुछ पढ़ने लग जाते हैं. सो अवॉइड के लिए सिलेबस का एक कॉपी ज़रूर रखिए. Second is basic books are very important, both for paper one and paper two, because without building concepts of paper one, we cannot write anything in paper two. So we need to build concepts of the subjects like polity, history, economics, geography, current affairs, मैथमेटिक्स, रीजनिंग. सो सारे के कॉन्सेप्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. सो फॉर कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आई ऑलवेज relied on NCRTs because no matter how tough the paper comes, ultimately जब sources collection की बात आती है या आंसर की निकालने की बात आती है, वो कहीं ना कहीं एनसीईआरटी से ही मिलती है. सो द एनसीईआरटी इज द मदर ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स. सो पहले उसको बहुत स्ट्रांगली तरीके से मल्टीपल रिवीजन से आप तैयार कीजिए, उसके खुद के नोट्स बनाइए अपने लैंग्वेजेस में, ताकि वो बार बार रीडिंग करने में आपको हेल्पफुल हो. And third is the daily habit of reading the newspaper, because with the uses of more and more internet and social media, we somehow losing that interest of reading and say newspapers article, the print newspaper articles. लोग बोलते हैं कि वी विल लिसन टू न्यूज़पेपर एनालिसिस और इन शॉर्ट्स में हम पढ़ लेंगे, बट दैट टाइम दैट यू आर इन्वेस्टिंग इन रीडिंग, राइटिंग एंड एक्सट्रैक्टिंग नोट्स, valuable keywords, increases your comprehension skills, speaking skills, immensely helpful for your vocabulary and grammar. So ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, बिल्डिंग ब्लॉक्स है टू राइट अ गुड आंसर, ये न्यूज़पेपर से ही तैयार होती है सर. और सबसे ज़्यादा गलतियाँ होती है सर मल्टीपल पीडीएफ्स को कलेक्ट करना.
because people start gathering of PDFs from every institutes that are available in the Telegram or any channels that are now coming up. So I would suggest कि आप कोई भी एक सोर्स को पकड़ के रखें. All sources are good. There is no inclination of mine कि यही अच्छा है दूसरा गलत है. They all come in circular way कि कभी ये मिसिंग है वहाँ पे तो कभी वो नेक्स्ट पीडीएफ में आ ही जाएगी. So be very confident on what you are following. Never leave the core subjects uh, at separated कि मैं हिस्ट्री बाद में देख लूंगा. Like it, prepare a subject at a time. And I would say practice, sir. Practice is very important because without writing good 200 300 questions on paper 2 cannot be racing with time in the examination because time के साथ भी है, pressure भी है और topic भी हमको नया ही लगता है examination में. सो ये तीन जो एक्स्ट्रा प्रेशर्स इंडिविजुअल्स के ऊपर रहती है ये तभी कम होगी जब हम थोड़ा अच्छे प्रैक्टिस करके जाएंगे. बिल्कुल ग्रेट यार. मेरे हिसाब से कोई भी अगर नया इंसान है उसे पूरा भी क्लैरिटी मिल गया होगा हाउ यू कैन स्टार्ट द प्रिपरेशन फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2. अब यार पेपर 2 में जैसा कि हमने देखा है वहाँ पे ऐसे राइटिंग होता है, प्रेसी राइटिंग होता है, एंड देर इज़ सम डिफरेंट काइंड ऑफ पैटर्न जो कि पेपर 2 में स्पेशली हम देखते हैं जो कि CDS में भी नहीं है और AFCAT में भी नहीं है. सो आई जस्ट वॉन्टेड टू नो फ्रॉम योर एंड कि यार पेपर 2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं एंड हाउ कैन वन पर्सन प्रिपेयर फॉर द पेपर 2 ऑफ CAPF. सर पेपर 2 की फर्स्ट क्वेश्चन जो होती है वो ऐसे की होती है. 6 टॉपिक्स आर गिवन बट यूपीएससी गिव्स द फ्रीडम टू चूज एनी 4 ऑफ द टॉपिक्स. उसको आप 300 वर्ड्स में आपको लिखना होता है एंड यू गेट hefty amount of space to express the essay. Then the second question is of argument. Two arguments are given and both are compulsory. So again, uh, 300 words space are given for the argument also. And for the third question, it is a report writing. Again, two reports are given within 200 words and both are compulsory. So these are the this is the most important section of the writing part of paper 2. And then comes the Pressy writing. Pressy writing of a good paragraph of 600 words needs to be summarized in 200 to 300 words without changing its meaning and in the examination. And boxes are is a different pattern is given in paper 2. In a single box a single word can be written. It's a grid like page that the UPSC gives to write Pressy. And next comes the comprehension. Again, 5 6 questions are I think so there in comprehension. It's a very scoring range for everyone because आपके पास answers already दिया हुआ है. You just need to compile and write in the questions that are asked. The next part or the last section is the English grammar section. Every concept of grammar is being asked by the UPSC from active passive voice to I think sir it was direct indirect speech का ऐसे जो grammatical concepts हैं. Then verbs, then correcting the statements, कहीं पे रॉन्ग हुआ है कि नहीं वो ढूंढना, मिस्टेक्स फाइंड करना जो सीडीएस में भी सर रहती है. इसमें थोड़ा सा कम एक पैरेलल हमें मिलती है सीडीएस से. एंड द थर्ड इज एंड द लास्ट पार्ट इज राइटिंग ऑफ स्टेटमेंट्स बेस्ड अपॉन सम कीवर्ड्स दैट आर बीइंग जिसको हम फ्रेजल वर्ब्स भी बोलते हैं. उस पे आपको एक एक स्टेटमेंट्स लिखना होता है. अगेन इट वुड अगेन इफ एनीवन इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएसबी and he is good in word appreciation test, I would he or she would find very useful for writing that sentences in phrasal verbs. So ऐसे complete होता है सर पूरा पेपर 2. ओके मैन, चलो दैट्स रियली इंसाइटफुल. एंड अनिकेत, CAPF के अलावा यू हैव ऑल्सो क्रैक्ड AFCAT मल्टीपल टाइम्स एंड ऑल्सो द CDS. तो एक एक करके यार आई वुड बी आस्किंग यू नो एनी 5 सजेशंस राइट दैट यू वांट टू गिव फॉर बोथ द एग्जाम एंड जो स्टूडेंट्स उनको प्रिपेयर कर रहे हैं. सो फर्स्ट थिंग लेट्स टेक दिस AFCAT एग्जाम, ठीक है, एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट वाला एग्जाम, एंड जो कि अगेन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ इंडियन एयरफोर्स के लिए होता है. सो व्हाट आर द 5 सजेशंस दैट यू वुड लाइक टू गिव टू द स्टूडेंट्स, क्योंकि AFCAT में भी 4 सेक्शंस हैं, रीजनिंग है, arithmetic, mathematics is there, English is there, and general awareness is there. And mostly one liner के क्वेश्चन होते हैं जिसमें again you score 3 marks for getting 1 correct and -1 if there is incorrect answer. So what would your 5 suggestions in order to crack AFCAT exam? सर मेरी पॉइंट ऑफ व्यू से एफकेट का मुझे जो सबसे टफ लगता था वो है इंग्लिश पार्ट, क्योंकि आई थिंक इन रिसेंट ईयर्स इंग्लिश में कुछ ऐसे वर्ड्स या सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछ रहे हैं दैट इज नॉट वेरी मच
कॉमन इन आवर डिक्शनरीज और इन आवर डे टू डे इंग्लिश। सो उसके लिए एक डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी ज़रूरत है इंग्लिश के लिए, बिकॉज इट इज़ वेरी स्कोरिंग ऑल्सो इन दी पैरेलल हैंड। आपको मैथ्स में रॉन्ग हो सकता है, आप जीके में रॉन्ग हो सकते हैं, पर इंग्लिश में इफ़ यू हैव प्रिपेयर्ड यू विल डू इट करेक्टली। इसमें कोई मिस होने की जगह ही नहीं है। सो आई वुड से इंग्लिश को थोड़ा सा इम्पोर्टेंस दे के आप प्रिपेयर करें। लोग उसको थोड़ा ऐसे ट्रीट करते कि लास्ट में बिल्कुल, देखा उसे उसे जाएगा। या तो सो छोड़ ही बट देते इट, हैं। हाँ सर, सो सबसे अच्छा एग्जामिनेशन में आपको पेस लाने के लिए इंग्लिश हेल्पफुल है सर। आप मैथ्स करते करते बीच में रुक रुक सकते हो कि सॉल्व नहीं हो पा रहा, यू कैन शिफ्ट टू इंग्लिश फॉर दैट। अगेन फॉर जनरल अवेयरनेस एफकेट इज जनरली वेरी मच फोकस्ड ऑन डिफेंस करंट अफेयर्स। सो आप उसका एक अच्छा नोट्स अपने साथ रखें, बिकॉज उसमें डिफेंस के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं दे आर इन डेप्थ क्वेश्चन, वो ऊपर ऊपर नहीं पूछते हैं वो। डेप्थ में अगर एक्सरसाइज के बारे में पूछ रहे हैं सो इट माइट बी सम अनकॉमन डिफेंस एक्सरसाइज बिटवीन टू कंट्रीज, ऐसा नहीं कि बस इंडिया यूएस एक्सरसाइज ही पूछ ले वो, जो कि जनरली सीडीएस में या तो सीएपीएफ में थोड़ा इजी एक्सरसाइजेस पूछते हैं। बट डिफेंस एग्जामिनेशन लाइक एफकेट वो थोड़ा डेप्थ ऑफ द एक्सरसाइज आता है, एटलीस्ट लोकेशन भी पूछ लेते हैं कि एक्सरसाइज का लोकेशन क्या था। सो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है सर करंट अफेयर्स के लिए, एंड आई वुड सजेस्ट कि वो अपने ही नोट्स बनाए करंट अफेयर्स के। बाकी इफ दे आर ओनली फोकसिंग ऑन मंथली कंपाइलेशन, फिर डेली वाला जो प्रैक्टिस है, डेली वाला जो एक एप्टीट्यूड डेवलपमेंट है वो नहीं होती मंथली में। बिल्कुल। मंथली में इट्स अ बर्डन ऑफ पीडीएफ कि आपको 30-40 पेजेस का पीडीएफ का एक बम्बार्डमेंट हो जाता है मंथ एंड में, एंड उसमें आई हैव फेस्ड मिसिंग अप अपॉन की पॉइंट्स, सब कुछ नहीं पढ़ सकते उसको, तो डेली कवरेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल। एंड एंड थर्ड व्हाट्स फॉर योर, रीजन, हाँ बिल्कुल, व्हाट्स योर टेक ऑन रीजनिंग एंड मैथमेटिक्स? सर रीजनिंग मैथमेटिक्स सर बहुत प्रैक्टिस चाहिए। यू नीड गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस बिकॉज एफकेट स्कोर्स अभी लेस देन 200 इज नथिंग। यू हैव टू गो टारगेट मोर देन 200 मार्क्स, बिकॉज सर कंपटीशन बहुत बढ़ गई है एग्जाम्स में। एंड स्क्रीनिंग होने के बाद, रिकमेंड होने के बाद, अगेन यू हैव अ फाइट इन द मेरिट लिस्ट, सो देयर योर रिटन मार्क्स इज वैल्यूएबल। सो आप जितने ज़्यादा मैथ्स और रीजनिंग में सही कर पाएंगे, यू स्कोर मच मोर देन योर कंपटीशन। सो इसके लिए प्रैक्टिस इज दी ओनली की। जितने ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे आपको खुद सर वो छोटे छोटे ट्रिक्स भी आपको हैंडी हो जाएंगे विथ प्रैक्टिस। सो बिल्कुल। दिस एंड वी कॉम्बिनेशन आई हैव थिंक टू विल, कीप दैट टाइम पैरामीटर आल्सो इन आवर माइंड कि हम जल्दी जल्दी क्विकली अटेंड कर पाए, बिकॉज टाइम इज आल्सो वेरी लेस। एंड अभी अनिकेत, लेट्स टॉक अबाउट योर सीडीएस एग्जाम। यार सीडीएस एग्जाम में क्या स्ट्रैटेजी थी? हाउ डिड यू गो अबाउट द जीएस पार्ट एंड द अदर सेक्शंस? सर सीडीएस की जीएस और सीएपीएफ की जीएस एकदम इक्वल है, उसमें कोई डिफरेंस है ही नहीं। क्वेश्चंस भी अप्रॉक्स सेम लेवल की होती है। बट इन रिसेंट सीडीएस पेपर्स हमने देखा है कुछ रैंडम लीगल क्वेश्चंस, कुछ रैंडम पॉलिटिक के क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो देयरफॉर you need to not only focus on the core books like Lakshmikant and एनसीईआरटीज। आई वुड सजेस्ट अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पढ़ ले, कोई कंपाइलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स, एक छोटी बुक्स आती है लैंडमार्क जजमेंट्स की, वो अपने साथ रखे, क्योंकि सिविल सर्विस की क्वेश्चंस भी थोड़ा रिफ्लेक्ट हो रहे हैं सीडीएस में। सो हम प्रिपरेशंस को कहीं भी गैप नहीं छोड़ सकते। तो सर आई वुड सजेस्ट कि थोड़ा बेसिक बुक्स के ऊपर भी एक स्टेप आगे लिया जाए। Ultimately, again it's the competition that is pushing the question paper to such an extent। एंड सीडीएस की एग्जाम प्रिपरेशन करने से ये भी याद रखें कि सिविल सर्विस हो या सीएपीएफ हो, उसके जो पीवाईक्यूज है, इट्स आल्सो ग्रेट सोर्स फॉर यू, बिकॉज कंडक्टिंग अथॉरिटी यूपीएससी ही है, उसके ही पूल ऑफ क्वेश्चन से सेट होती है सीडीएस की क्वेश्चन। सो कोई प्रीवियस एग्जामिनेशंस एक्ट एज अ गुड गाइड टू यू कि यूपीएससी की माइंडसेट अभी कौन से सेक्शंस में कैसे जा रहे हैं। सो आई थिंक सर पीवाईक्यूज विल बी वेरी हेल्पफुल। एंड मैंने जब भी मैंने एसएसबी में जाके जब बात की है स्टूडेंट बाकी मेरे दोस्तों से वहाँ पे, तो दे वर स्कोरिंग वेरी गुड मार्क्स इन द इंग्लिश सेक्शन ऑफ सीडीएस। सो यू ऑल्सो नीड टू वेरी वेल प्रिपेयर इन द इंग्लिश पार्ट, क्योंकि स्कोरिंग वहीं पे जो फैक्ट डिफरेंस है हो जाती है। सो इंग्लिश के लिए अगेन गुड अमाउंट ऑफ प्रैक्टिस इज द की।
PYQs, ऑल्सो दी प्रैक्टिस ही हो सकती है सर, उसके अलावा इंग्लिश में तो और कोई चारा है नहीं। एंड मिस्टेक्स जितना कम हो, एक्यूरेसी पे हम इंग्लिश में फोकस करें तो अच्छा है, क्योंकि आई नो कि जनरल साइंस में एक्यूरेसी में थोड़ा नीचे जाते हैं स्टूडेंट्स। मैंने भी वही मेरा भी वही हुआ था, जनरल साइंस में बहुत नेगेटिव हुआ था, लेकिन इंग्लिश में बैलेंस हो गया तो अल्टीमेट इतना स्कोर आ गया कि यू गेट अ कॉल फॉर द एसएसबी इंटरव्यू। देयरफॉर आई वुड से कि आप कोर कॉन्सेप्ट्स पे तो रहिए, उसके ऊपर यू हैव टू गो अ स्टेप अहेड टू प्रिपेयर योर एग्जामिनेशंस लाइक सीटीएस। तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस के जो पूल ऑफ वैरायटी है, उसमें वी कैन नॉट ओनली डिपेंड अपॉन कि मेरा 4 कोर सब्जेक्ट अच्छा है तो मेरा एग्जामिनेशन निकल जाएगा। ओके। सो वी कैन नॉट बेट अपॉन इट। कोई सब्जेक्ट बहुत टफ हो गया, वी कैन नॉट सॉल्व मोर देन 2-3 क्वेश्चन, क्योंकि देन आई हैव टू शिफ्ट इनटू दिस स्मॉल स्मॉल टॉपिक्स। बिल्कुल सो बिल्कुल। इसीलिए इसको नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए सर। बिल्कुल यार, एकदम से सही कहा। एंड आई गेस ऑडियंस के जितने भी डाउट्स होंगे यार, वो काफ़ी आपने इलेबोरेटिवली कवर कर ही लिए हैं। ओके अनिकेत भाई, नाउ लेट्स मूव टू योर स्ट्रैटेजी अबाउट क्लियरिंग द फिजिकल फिटनेस टेस्ट। अब हमें जैसे कि पता है CAPF में आपका पहले रिटर्न होता है, रिटर्न के बाद आपको PFT के लिए बुलाते हैं। सो PFT के लिए आपने कैसे तैयारी की, एंड PFT में क्या क्या स्टेजेस होते हैं? सर मेरा पीईटी BSF गुवाहाटी में था इन द मंथ ऑफ नवंबर। सो एंड द रिटन एग्जामिनेशन वाज ओवर इन मंथ ऑफ अगस्त। The results are announced after 1 month. So I would suggest कि सर वो 1 month of result announcement के लिए students ना wait करें. If they are having a good score comparing with the unofficial answer keys that are released by the various coachings, उससे अगर आप 5-6 marks plus minus में हो, so please start preparing for your physical efficiency test, because preparation करते करते we get overweight, we have left away the फिजिकल एक्सरसाइजेस, सो आपको टाइम लगेगी सर टू एनहेंस योर परफॉर्मेंस। सो फर्स्ट अगर हम स्टेजेस की बात करें, वी हैव अ 800 मीटर रेस within a stipulated time, different for men and women. Then we have the 100 meter race. I guess it was 16 seconds for men and 18 seconds for female. Then we have the long jump, the most critical part of that PET, because maximum of the students get out in this stage of long jump. And the fourth is the short put. It is very easy. Any individual who has a good practice of the techniques can easily pass the fourth test. तो सर मेरी प्रिपरेशन मैंने आफ्टर चेकिंग द अनऑफिशियल आंसर की, आई वाज सेटिस्फाइड कि हाँ मेरे कट ऑफ से आई हैव इन अ expected cutoff say I have a good score, so let's focus on the physical part. From my side, I was quite overweight in my height category, because we have to match that height to weight ratio wala part. So I started first. I started by running in the morning, वन वन टाइम एट अ डे। बाद में वो मैंने शाम और सुबह दोनों करने की कोशिश की। सो पहले आप थोड़े धीरे धीरे रनिंग, जॉगिंग, वॉकिंग तीनों का कॉम्बिनेशन शुरू कीजिए, क्योंकि फर्स्ट में ही इफ वी स्टार्ट हेक्टिक रनिंग देन बॉडी विल ब्रेक डाउन। सो स्लोली स्लोली पेस को बढ़ाइए। टेक 2 weeks to stable yourself and get into the momentum. Then second I would say फूड हैबिट्स। आप ये 4 महीने के लिए प्लीज़ अवॉइड एनी फास्ट फूड्स, बिकॉज अल्टीमेटली वो आपके हेल्थ में भी इम्पैक्ट करता है, आपके वेट पे इम्पैक्ट डालेगा, एंड एट द सेम टाइम अपने नेक्स्ट डे प्रैक्टिस पे जाएंगे अर्ली मॉर्निंग, इट कैन हैव इफेक्ट ऑन योर परफॉर्मेंस ऑल्सो। तो फूड हैबिट्स को इम्प्रूव करने की बहुत ज़रूरत है। थर्ड, सर मैंने बहुत सुना है कि लॉन्ग जंप ज़्यादा करनी नहीं चाहिए क्योंकि चोट लग जाती है, बट अल्टीमेटली अगर हम करेंगे नहीं और कम करेंगे तो चोट लगने की संभावना और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो हैव अ वेरी सस्टेनेबल प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग जंप, नॉट हार्डन कि हमको 1 day 20 जंप्स ही करने हैं। 3 jumps, 4 jumps, अगेन आफ्टर अ वीक 5 jumps, 6 jumps, ऐसे अगर हम लैडर को अपने बॉडी के हिसाब से अगर प्रिपेयर करेंगे, सो इट वुड बी सस्टेनेबल, हम इंजरी से बच सकते हैं। बट डू नॉट मिस द प्रैक्टिस ऑफ लॉन्ग जंप। आपको रिकॉर्ड करनी पड़ेगी, यू हैव टू राइट इट इन योर डायरी कि मैंने
पिछले वीक कितना जंप किया, फिर 2 वीक्स प्रैक्टिस के बाद फिर कितना जंप किया, ओके। क्योंकि 2024 के बैचेस में भी 8 to 9 गेट एलिमिनेटेड इन द लॉन्ग जंप, सो अच्छे खासा रेशियो लॉन्ग जंप में निकल जाते हैं सर, तो उसको ओके। नेग्लेक्ट नहीं करनी चाहिए। एंड फॉर शॉर्ट पुट अगेन बेसिक प्रैक्टिस ऑफ थोड़ा वेट ट्रेनिंग हो गया, थोड़ा हम्म। डंबल एक्सरसाइज हो गया, हम्म। सो दे वुड बी डूइंग वेल इन दी शॉर्ट पुट एक्सरसाइज ओके और चल। शॉर्ट पुट टेस्टिंग। ओके चलो मैन, दैट्स ग्रेट टू नो। एंड अनिकेत, व्हाट अबाउट योर इंटरव्यू? आपका इंटरव्यू कैसा गया था? विच इज़ बेसिकली आई गेस इट्स इन न्यू दिल्ली इटसेल्फ एट द यूपीएससी हेडक्वार्टर्स। सो आपका इंटरव्यू कैसा गया? हाउ डिड यू प्रिपेयर फॉर दैट एंड हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द एसएसबी इंटरव्यू वाला पर्सनल इंटरव्यू? सर मेरा इंटरव्यू यूपीएससी धौलपुर हाउस में इन द मंथ ऑफ मई में हुआ था, एंड इट वाज टेकन बाय श्री संजय वर्मा सर, ही वाज द चेयरपर्सन ऑफ द बोर्ड। प्रिपरेशन ऑफ द इंटरव्यू मैंने कुछ ऐसा मतलब एक्सपेक्टर नहीं किया था, इट्स अगेन अ प्रोसेस कि मेरा एसएसबी इंटरव्यू से जो जो मैंने नोट डाउन किया कि यार मेरे नॉलेज में अभी भी गैप है, ऑफ डिफेंस नॉलेज में अभी भी गैप है, इंटरनेशनल रिलेशंस में अभी भी गैप है, सो आई नीड टू वर्क ऑन दैट पार्ट। सो मैंने वो नॉलेज गैदरिंग पे, और नॉलेज को सिर्फ गैदर नहीं, उसको अब रिटर्न नहीं कर सकते, यू हैव टू स्पीक ऑफ इट। सो एक पीयर ग्रुप हमने बनाए थे जब आफ्टर पीईटी, सो इट वाज वेरी हेल्पफुल कि एक 3-4 जन का एक दोस्त का ग्रुप बन गया था, एंड वी यूज्ड टू स्पीक लाइक 2-3 minutes in any of the topics that was given by our mates। कि उसने अगर इंडिया पाकिस्तान में बोल दिया तो मैंने वन नेशन वन इलेक्शन में 2 मिनट बातें कर ली। सो ऐसे करके वी यूज टू कम्युनिकेट एंड ब्रेक द रेजिस्टेंस दैट वी वर फेसिंग वेल स्पीकिंग। सो ऐसे ही मैंने इंटरव्यू की प्रिपरेशन करी। एंड डिफरेंट फ्रॉम दी एसएसबी इंटरव्यू वैसे कि एसएसबी सर जनरली अगर प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड या वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द बोर्ड रहते हैं तो वन ऑन वन इंटरेक्शन होती है। इन सम केस इट इज टू टू ऑन वन इंटरेक्शन अगर कोई और ऑफिसर रहते हैं अंदर, बट इन यूपीएससी वी हैव अ पूल ऑफ ऑफिसर्स। In my case, it was four of individuals were taking my interview, including one lady member was there. So, and it's a round table. No, I will not say a interview, but a round table discussion because we were sitting very close, not less than a one hand distance from each other. So, आप बहुत क्लोज बैठे हो, आपका फुट मूवमेंट, आपका हैंड मूवमेंट, इफ यू आर ओवर स्वेटिंग on some questions, or your palpitating behavior is all gets noticed by the individuals because he or she is very close to you। ऐसे बॉडी लैंग्वेज पे भी आपका फोकस रहता है उन पे कि हाउ यू आर मेंटेनिंग योर बॉडी लैंग्वेज। सो उसके लिए भी थोड़ा प्रिपरेशन, मिरर प्रैक्टिस हेल्पफुल होता है। आप ओके। खुद मिरर से बात कीजिए या ऐसे ही मोबाइल रिकॉर्डर ऑन करके यू जस्ट स्पीक ऑन एनी टॉपिक फॉर 2-3 minutes। अगेन इसका हेल्प आप लेक्चरेट से ले सकते हो एसएसबी में। यू हैव टू स्पीक टू योर ओन एसएसबी मेट्स फॉर एटलीस्ट 3 minutes in any of the current affair topics that are given। ओके So ऐसे अनिकेत, यहाँ हर पे आई वुड जस्ट लाइक टू स्टॉप यू हेयर एंड जस्ट आस्क यू दैट जैसे एसएसबी इंटरव्यू में जो इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो मोस्टली क्वेश्चनिंग करता है एक पीआईक्यू फॉर्म से, राइट? यू वुड बी नोइंग दैट। सो ये जो सीएपीएफ का एग्ज़ाम है इसमें ऑल्सो लाइक आई हैव क्वाइट हर्ड अबाउट डिटेल्ड एप्लीकेशन फॉर्म डैफ होता है। yes sir। सो उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं या कुछ एडिशनली भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं? एंड अगर एडिशनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सो आई जस्ट वांट टू आस्क यू इफ एनी क्वेश्चंस यू रिमेंबर जिसमें जिनको टैकल करते टाइम पे आपको भी लगा पता कि नहीं यार, मे बी दे आर ट्राइंग टू टेस्ट समथिंग, या थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चन उस यूपीएससी पैनल ने आपसे भी पूछा हो? yes सर, जैसे आपने बताया पीवाईक्यू एसएसबी में क्वेश्चन का मेन सोर्स होता है, वैसे ही सीएपीएफ में भी इट्स द डीएफ दैट इज बीइंग टेकन इनटू कंसिडरेशन बाय ऑल द बोर्ड मेंबर्स। Initially for 10-12 minutes they were all concentrating on my DAF। Some questions were asked about from my education, some were from my hobbies and interest, some questions were also asked कि मैं जहाँ से बिलोंग करता हूँ उसके बारे में। लेकिन इन टाइम यू द conversation when gets into more diverse areas, panelists ask questions that are out of the box or from the deaf. Basically, I remember a question that was asked by the lady member. She was asking two questions I remember. One is if you have visited any border areas
if you have seen any border post, any individual of middle-aged personality person, he's standing at a tower looking towards the country that he is bordering to, but seeing nothing for hours. He's just having a flowing river in front of him, or a desert sand in the Rajasthan, or the swampy areas of Tripura and Meghalaya. But he's standing for 8 hours, no communication, no friends, no family. So what mental aptitude he has while serving there, how it is impacting his mentality? How do you think you are coming from an educated background, you are a civilian yourself, how will you help them? So ये क्वेश्चन था जो मेरे एकदम डेफ के बाहर से था. You need to understand the mentality of that jawan who is standing at such an height and such a difficult terrain. So मैंने बताया कि सर मोर नंबर ऑफ ब्रेक्स अगर हम इनपुट दे सके उन्हें कि 4 to 5 hours की एक ड्यूटी हो, एंड द सेकंड मैन हु इज in the I would say the other border post get changes their position along time, कि थोड़ा लोकेशन चेंज होगा तो दूसरा एक दूसरा चीजें वो देखेगा, तो एक मेंटल मोनोटोनिसिटी ब्रेक होगी. तो एक ऐसे कर सकते हैं. दूसरा, जो हम स्कूल्स में रिसेस ब्रेक लेते थे, या जो हम चेंज ऑफ गार्ड्स जो होती है सर फौज में, एक एरिया के लिए अलॉट होते हैं, फिर चेंज होती है. सो वैसा इनिशिएटिव हम CAPS में भी ला सकते हैं कि a company is being posted there for 4 to 6 months, then again next company gets into position. ऐसे अगर सर्कुलर में होगा, that civilian life will or they will also enjoy the civilian life and also the border life that they have been allotted to. So ऐसे करके हम उसके मोनोटोनिसिटी को रिड्यूस कर सकते हैं. And again, a question was a very interesting key, since use of mobile phones are increasing in the Javans, because they are leading such a long distance life from their family. So ऐसे एक तो उनके सोशल मीडिया यूजेस भी बढ़ रहे हैं, दूसरा दे आर ऑल्सो आई वुड से very much vulnerable to the Pakistan or the other anti-India forces that are always targeting them. So आप कैसे उनका डिजिटल फुटप्रिंट को रिड्यूस करेंगे, टेकिंग इनटू माइंड कि वो उनका एक ही वे ऑफ कम्युनिकेशन है विद द फैमिली इज द मोबाइल फोन. आपको वो भी ध्यान में रखना है. सो मैंने ऐसे बताया कि सर वाइल गोइंग इन ड्यूटी, अगर वो थोड़ा मोबाइल फोन्स को सबमिट करके जाए बिफोर गोइंग इनटू देयर पोस्टिंग, अगेन इन द रिसेस टाइम दे कम, चेंज ऑफ गार्ड्स हो जाए, दूसरे लोग चले जाए, वो enjoy their mobile or the internet life, then it would be a balance. Again, हम लोगों ने सर जो मूवीज देखी हैं बॉर्डर की हो या जो भी हो सर, चिट्ठी लिखने की एक बहुत पुरानी आदत थी फौज में. सो शायद वो मिस हो चली गई है, लेकिन उसको अगर हम ला सके तो एक बहुत अच्छा मोमेंट ऑफ कम्युनिकेशन बिल्डअप होगा पोस्टल सिस्टम जो है. सो शी वॉज वेरी मच हैप्पी बाई लिसनिंग टू द सेकेंड पॉइंट कि मैं वो लेटर राइटिंग वाला पॉइंट ऐड किया, बिकॉज वही सब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ही मैंने बिल्कुल दिया, बिल्कुल. एंड इट कैन बी एप्लीकेबल. सो ऐसे आउट ऑफ द बॉक्स क्वेश्चंस यूपीएससी पूछती हैं. हम्म. इट जस्ट चेक्स ऑन योर आई थिंक थिंकिंग एबिलिटी कि आप कैसे ऐसे सिचुएशंस को डील करते हैं. बिल्कुल. एंड अनिकेत भाई, फ्रॉम योर एजुकेशन बैकग्राउंड आई नो दैट है ना, यू हैव डन योर बीटेक फ्रॉम NIT, राइट? सो आई जस्ट वांटेड टू आस्क यार कि इस बात में कितनी सच्चाई है कि इंजीनियरिंग छोड़ के सभी कर रहा है भाई? बिकॉज आई कैन क्लियरली सी, तू भी बता रहा था दैट यू डिड योर जॉब right for couple of months, then you thought of leaving your job and just completely devoting your time with the CAPF and SSB interview thing. So भाई कितनी सच्चाई है इस चीज़ में, and what you would like to say? सर ये तो एकदम ही सच्चाई है, क्योंकि इंजीनियरिंग में इंजीनियरिंग छोड़ के सब कुछ किया जाता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग को पता ही नहीं है वो इंजीनियरिंग क्यों कर रहे हैं. सो दे जस्ट कम एंड हैव अ गुड एक्सपीरियंस कि दूसरे कैरियर्स को थोड़ा टटोल के देखें. सो आई हैव फ्रेंड्स हु हैव शिफ्टेड फ्रॉम इंजीनियरिंग टू मैनेजमेंट. कुछ तो मेडिकल बैकग्राउंड में भी शिफ्ट कर गए थे मिड ईयर्स में.
बिल्कुल। तो सिमिलरली मैंने भी एंड आपको भी यार जब जैसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर है वो भी पूछता होगा बहुत बार दैट अनिकेत व्हाट इंस्पायर्ड यू टू गो विद बीटेक, सो व्हाट वाज योर रीजन ड्यूरिंग दैट टाइम, भले वो एसएसबी में भी हो या सीएपीएफ में भी जब पूछा गया हो। सर पहली बात तो जब ऐसे क्वेश्चन पूछता है जस्ट गेट इनटू द ट्रुथ की 10th के बाद इंडिविजुअल्स ऑफ आवर सोसाइटी गिव्स अस ओनली टू वेरी क्लियर ऑप्शंस, या तो इंजीनियरिंग या तो मेडिकल, इफ यू हैव स्कोर्ड गुड मार्क्स इन योर साइंस एंड मैथ्स। सो अगेन इतना बाइपोलर करियर था तो आई शिफ्टेड टू फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, एंड उससे एक ही करियर दिखता है नज़दीक, वो है इंजीनियरिंग। हम्म। इसका एक पॉजिटिव्स है कि चलिए आप जो जिसको इंटरेस्ट है वो इंजीनियरिंग कर रहे हैं, दे आर गेटिंग गुड जॉब्स एंड अर्निंग गुड। बट जो नहीं एस्पायर करते हैं इंजीनियरिंग की या ऐसे कोर्सेज की, बट दे आर नॉट अवेयर कि और क्या का करियर ऑप्शंस है, सो उनके लिए इंजीनियरिंग इन सेकेंड ईयर थर्ड ईयर बिकम्स दैट सिचुएशन कि चलो कोई दूसरा करियर टटोलते हैं। So if that career counseling or opportunity or that medium of communication is provided in class 12th or I would say 11th, so student engineering में इतना enter होंगे ही नहीं, they would all get into different careers बिल्कुल very at a very early stage. बिल्कुल। एंड So अनिकेत, ऐसे ही मैं ओके एंड सॉरी टू इंटरप्ट, आई जस्ट वांटेड टू आस्क यू वन थिंग हियर दैट यू नो बहुत ज़्यादा बच्चों का मेरे हिसाब से ये बहाना भी रहता है एंड बहुत एक्सक्यूजेस भी देते हैं कि सर हम स्टार्टिंग से स्टडीज़ में अच्छे नहीं हैं। तो आई नो दैट लॉट ऑफ ऑडियंस वुड बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट योर परसेंटेज कि भाई अनिकेत सर आपकी क्या परसेंटेज थी एंड ऑल। सो वी जस्ट वांट टू नो अबाउट दैट थिंग एज वेल कि अनिकेत लाइक इन योर 10th, in your 12th and in your graduation जो कि आपने बीटेक किया एनआईटी से, so what were your percentage during these all three times? भैया मेरी क्लास 10th में वही हमारे टाइम में 10 CGPA I secured in 2016, Okay. and in 2018 I gave my class 12 boards. I secured 87% Mm-hmm. in my class 12 board examinations, and in graduation again we entered into the CGPA system, so it was 8.04 was my CGPA in my final semester. So Okay. these were my mark sheet around the So starting से years. ही you were like quite interested in studies and all, that I can clearly see because वो आपके academic score से भी दिख रहा है। and again यार मेरे हिसाब से तो देखो studies are very important part। कल को when you will be joining CAPF या भले ही you join any of the armed forces, officers have to study a lot। ये बहुत ज़्यादा बच्चे तो अभी ही पढ़ाई से परेशान हो रहे हैं बट इन्हें सच्ची नहीं पता अकेडमी जाके या ट्रेनिंग टाइम या आगे जाके उन्हें कितना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। चलो यार अनिकेत, लेट्स कम बैक टू आवर क्वेश्चन दैट वाज बेसिकली कि दैट यू गॉट इनटू अ जॉब आफ्टर योर एनआईटी, राइट, बट यू थॉट ऑफ लिविंग इट। तो भाई क्या क्या चैलेंजेस आ रहे थे जॉब के साथ एंड व्हेन डिड यू थॉट ऑफ लिविंग दैट जॉब, एंड उसके बाद कैसे बहुत ज़्यादा यार सोसाइटी प्रेशर भी होता है कभी कभी कि अरे यार अब तो जॉब भी नहीं कर रहा, अब तो वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी नहीं है एंड अब एग्ज़ाम भी क्रैक करना है, सो हाउ डिड यू डील विद ऑल दैट प्रेशर? सर मैंने जब पहली CAPF अटेम्प्ट दिया और तब मैं ऑलरेडी जॉब में था, तो मुझे अटेम्प्ट देके पता चला कि आई वाज गेटिंग समवेयर रॉन्ग इन माय प्रिपरेशन। सो दैट वाज द पोजीशन वेयर आई डिसाइडेड कि नहीं, आई नीड टू हैव अ गुड टाइम विथ माय स्टडीज, क्योंकि इन कॉलेज टाइम्स व्हेन यू आर बर्डन विद द कॉलेज सब्जेक्ट्स, आप एकेडमिक्स में इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो ना होते हुए भी होना पड़ता है, क्योंकि यू हैव टू मेंटेन योर CGPA बिकॉज यू कैन नॉट डूम एन ऑप्शन ऑफ योर फ्यूचर फॉर इट, एंड इसीलिए कॉलेज के टाइम में थोड़ा 50-50 प्रिपरेशन ही चलती थी। बट इन जॉब when I got entered, it totally got stopped because आप corporate में होते हो, they need the most productive time of you, so you have to devote 10, 11, 12 hours of your time into the job. So आप प्रिपरेशन बैकफुट पे चली जाती है। so, इसीलिए मैंने सोचा कि लेट्स ड्रॉप द जॉब, and my if my and my age is allowing, then take that risk. ये बहुत कैलकुलेटिव था क्योंकि आई हैड अ गुड फैमिली एनवायरनमेंट, आई हैव माय फादर एंड मदर बोथ वर्किंग, सो दे आल्सो सपोर्टेड मी कि अगर तुझे लग रहा है कि तू कर सकता है तो यू टेक अ ब्रेक एंड प्रिपेयर योरसेल्फ, देयर इज नो प्रेशर फ्रॉम आवर साइड। सो एक एडवांटेज मुझे ये मिला। देन फॉर अवॉइडिंग द सोसाइटी, आई पर्सनली सजेस्ट कि आप अनाउंस ही मत करो
अब हर जगह लोग अनाउंस करते रहते हैं कि मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। बेटर आप अनाउंस नहीं करोगे, आप उतना ज़्यादा कन्वर्सेशन विद दी इंडिविजुअल्स नहीं जाओगे जो आपके प्रिपरेशन को या आपके लाइफ को इम्पैक्ट नहीं करता है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। सो आपको उतना प्रेशर नहीं हैंडल करना पड़ेगा, बिकॉज मैं मेरे ये हिसाब से ये भी होता है कि हम मेरे मैं अनाउंस करते चले जाता हूँ कि यार आई एम डूइंग यूपीएससी, एनीवन हु इज मीटिंग विथ मी, सो देन इट अल्टीमेटली क्रिएट्स अ प्रेशर ऑन योरसेल्फ कि यार मैंने उसको भी बता दिया कि बिल्कुल। मैं यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ, अब रिलेटिव्स को भी पता है। सो एक अनएक्सपेक्टेड बर्डन आपके ऊपर आ जाता है। सो फॉर रिलैक्सिंग आई वुड से डू नॉट अनाउंस इट कि यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी, जस्ट let your very close friends, your family members know it, because they would be the one supporting you in any way they can. And do your preparation silently. जितना आप silently preparation करोगे उतना आपको impactful होगा वो। वट यू हैव शेयर्ड विद अस कि दैट प्राइवेसी इज़ पावर। सो भाई जो भी प्रिपेयर कर रहा है यार, अगेन देखो जिन लोगों के लिए मैटर करता है, यू गाइज 100% शेयर इट विद देम दैट यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए सीडीए सैफकैट। बट जितने ज़्यादा लोगों को आप लोग बताएंगे, मुझे भी लगता है यार कि वो आप एक एडिशनल अब प्रेशर अपनी लाइफ में क्रिएट कर रहे हैं, राइट? फिर अब आपके लिए ये सारी चीज़ें कंपल्शन बन जाएगी कि नहीं भाई अब तो मुझे निकालने हैं, और अगर नहीं निकला तो आई विल बी अ लूज़र। बट इट्स नथिंग लाइक दैट। देखो लोग अपने व्यस्त हैं, तुम अपना व्यस्त रहो अपने काम में, दैट्स व्हाट आई बिलीव। चलो अनिकेत, नाउ मूविंग अहेड विद माय सेकंड लास्ट क्वेश्चन। सो अनिकेत, यू स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक ऑफ 44, राइट, इन CAPF। अब जो ऑल इंडिया रैंक 1 भी आया है, राइट, उसने भी यार कुछ ना कुछ ऐसी स्ट्रैटेजी तो अपनाई होगी वाइल क्लियरिंग द एग्जाम। सो व्हाट डू यू थिंक दैट व्हाट यू वुड हैव डन डिफरेंटली, ताकि ऑल इंडिया रैंक 44 की जगह यू वुड हैव ऑल्सो स्कोर्ड ऑल इंडिया रैंक 1? I'm not telling you to just compare it, but again, I just want to know the thought process of that, All India ranker जिसका 1 आया होगा, and उसने क्या क्या थोड़ी सी चीज़ें और बेहतर वे में प्रिपेयर की होंगी। सर मार्कशीट वाज रिलीज्ड बाय यूपीएससी। जब मैंने देखा ऑल इंडिया रैंक 1 की मार्क्स क्या है, ही वाज आई थिंक 50-60 मार्क्स मोर देन माई सेल्फ इन पेपर 1 इटसेल्फ। इसका मतलब उसकी सर एमसीक्यू प्रिपरेशन इज टू गुड। आई थिंक ही वाज स्कोरिंग 170 और 180। सो उसका एमसीक्यू वाज वेरी गुड, मीन प्रिटी गुड कि उसने ऐसे एक टफ पेपर में, क्योंकि क्या बोलते हैं सर, एक ये चल रहा था कि 24 का पेपर सबसे टफ हुआ है सीएपीएफ का। सो उस पेपर में भी अगर ये स्कोरिंग सच अ ग्रेट मार्क्स ऑफ 160 170, इसका मतलब सर उसने बहुत हार्ड प्रिपरेशन किया होगा। एंड ही मस्ट बी पिन हैव पिन पॉइंट एक्यूरेसी ऑन हिज आंसर्स, क्योंकि एमसीक्यू में एक्यूरेसी बहुत मैटर करती है। आप ऐसा नहीं कि आप बस क्वेश्चन सॉल्व करते चले जाए, यू हैव टू बी करेक्ट ऑल्सो। नेगेटिव्स में आपको पीछे खींचती हैं। So I think he has prepared very well of his subjects for paper one. Practice is the key for himself, for him also. And second paper was also comparable to mine. One एक या दो मार्क्स की ही डिफरेंस है। इसका मतलब सर दोनों की प्रिपरेशन अच्छी थी पेपर 2 में। एंड इंटरव्यू मार्क्स वाज आल्सो वेरी बैलेंस्ड ऑफ माइन एंड हिम। सो इसीलिए मैं पर मतलब मेरे एनालिसिस से वही था कि ही हैव डन प्रेटी वेल इन पेपर 1, एंड उसका एक्यूरेसी मेरे से बहुत अच्छा है। और उसका आई थिंक ग्रैप्सिंग कैपेबिलिटी, उसका आई वुड से मेमोराइजिंग उतना अच्छा है बाकियों से, इसीलिए उसने ऑल इंडिया रैंक 1 अचीव किया सर। ओके, सो मेरे हिसाब से इन ऑर्डर टू रियली गिव अ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन ओवरऑल मेरिट, तो जो हमारे रिटर्न के पेपर है, बेसिकली पेपर 1 जो कि ऑब्जेक्टिव है, उसमें हम काफ़ी ज़्यादा लीड ले सकते हैं। वन इज़ दैट। सेकेंड जो सब्जेक्टिव है, मोस्टली अगेन यार आई गेस जो ऑल इंडिया रैंक विद इन 50 टॉप 50 आ रहे हैं, सबका आसपास कॉमन आंसर्स होंगे, सब वही करते हैं यार, रीडिंग न्यूज़पेपर्स, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस एंड डिटेल प्रिपरेशन। सो अनिकेत, बिफोर मैन वी जस्ट एंड ऑन दिस इंटरव्यू, आई जस्ट वांट टू आस्क एनी फाइनल पीस ऑफ एडवाइस दैट यू वुड लाइक टू गिव ऑल द ऑडियंस हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर देयर CAPF, NDA, CDA, SAFCAT, SSB और एनी अदर competitive एग्जाम। सर अगर मेरी बिफोर ग्रेजुएशन की कम्पिटिटिव एग्जाम्स मैंने दी तो वो जेई था। तो अगर कोई जेई के लिए है तो आई वुड सजेस्ट कि आप दो सब्जेक्ट्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना के प्रिपरेशन करिए। डिपेंडिंग आप फ्री, यू आर फ्री टू चूज एनी टू सब्जेक्ट्स।
सिमिलरली सर एनडीए जो प्रिपेयर कर रहे हैं, आई वुड सजेस्ट कि आपको उनसे भी बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि दे विल ओनली क्वालिफाई राइट रिटन पेपर एंड वुड गेट एडमिशंस इनटू टेक्निकल कॉलेजेस, बट आपको एसएसबी जैसी एग्जामिनेशंस को फेस करनी है। सो वर्क ऑन योर पर्सनैलिटी। बहुत अर्ली एज में आप प्रिपेयर करेंगे तो बहुत हेल्पफुल भी होगा, नॉट ओनली फॉर योर एग्जाम्स बट फॉर ऑल योर लाइफ। आई वुड से एसएसबी इज दी ओनली प्रोसेस कि आपको सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, एक लाइफ की प्रिपरेशन भी वो करवा देती है सर। सो एनडीए के लिए और सीडीएस भी सिमिलर एडवाइस है कि आप अपने सोर्सेज को लिमिटेड रखिए, प्रैक्टिस पे ज़्यादा फोकस, अपने नोट्स इज़ दी बेस्ट ऑफ ऑल। आप टॉपर नोट्स के पीछे मत भागिए। दे आर टॉपर्स आफ्टर द एग्जामिनेशन। उनको एग्जामिनेशंस के पहले उनको भी नहीं मालूम था दे वुड बी टॉपर्स। सो अगेन बिलीव ऑन योर नोट्स। वो भी अपने ही नोट से ही पढ़ के अगर टॉपर बने, आप भी अपने नोट से पढ़ के टॉपर बन सकते हैं। So there is no point of running behind notes of toppers, and again have a develop more reading skills of newspaper हो, magazines हो, आपको जो अच्छी लगे, बट डेली रीडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप रीडिंग स्किप मत कीजिए। आई हैव बीन रीडिंग न्यूज़पेपर सिंस 4-5 years डेली, मैं मिस नहीं करता ये। अब इट हैज़ इनग्रेन्ड इन माई सेल्फ। न्यूज़पेपर नहीं होगा देन आई विल बी फेसिंग एंड एनजाइटी कि यार दिन अच्छा नहीं शुरुआत हुआ। सो ये हैबिट आप डेवलप कीजिए। ये 6-7 महीने में आप कॉन्स्टेंटली सिट इन योर टेबल एंड मेक नोट्स एंड रीड, ये डेवलप हो जाएगी। तो ये सब कुछ बहुत सिमिलर रेटोरिक ही है, लेकिन मैं और पुश करूँगा कि अगर सब कोई ये करके हुए हैं तो आप भी करके उस रिजल्ट को पा सकते हैं। एंड अगेन डोंट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर कोर सब्जेक्ट्स। ऐसा नहीं कि आप पढ़ते पढ़ते अपने कोर सब्जेक्ट्स को ही नेग्लेक्ट कर दी। एंड PYQs always is your main friend, philosopher and guide, because it will only help you to not divert away from the examinations that you are preparing for. सर यही कुछ एडवाइसेस है जो कि मैं देना चाहूँगा। ओके, चलो यार अनिकेत भाई, इट वाज अ रियली इंसाइटफुल इंटरव्यू। आई बिलीव दैट जितना मैं पर्सनली सीखा हूँ भाई, है ना, फ्रॉम योर एडवाइसेस एंड सजेशंस, उतना ही हमारी ऑडियंस भी सीखी होगी, राइट? एंड आई बिलीव दैट यू नो इट्स गोइंग टू हेल्प देम अ लॉट इन देयर preparation journey as well, right? So Aniket bhai, it was, you know, great interacting with you. Thank you so much for your time, and all of us, we wish you a great journey ahead in your CAPF. Keep inspiring and keep shining.